So, hey guys, today I'm with the NCERT Notes of Animal Kingdom. This chapter is really very important for NEET and 11th class student too. So, इसमें से 5 to 6 questions used to come in NEET. So, I made this video to make you learn how to make NCERT notes, proper NCERT notes. In this video, I'll try to cover till phylum Coelenterata. If you need more short and understandable lectures like this, let me know in the comment section. I can make more. फास्टली आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़नी है एंड आफ्टर डैट आपको फिर मेरे नोट्स के थ्रू जाना है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाई है। सो यू हैव टू गो थ्रू द बुक वंस। सो लेट्स बिगिन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बाय आर.एच. व्हिटेकर in 1969 into 5 kingdom system like Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Then comes to kingdom Animalia. Kingdom Animalia is characterized by multicellular eukaryotic animal forms and lack of cell wall. इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. Kingdom Animalia lack cell wall. Then this classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. After that, the basis of classification. Basis of classification mainly includes 6 characters. These are arrangement of cells, nature of xylem, digestive system, body symmetry, circulatory system, reproductive system. एंड आपको ये याद रखना है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता है. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपको मेनली याद रखना है. So, on the basis of fundamental characteristics, kingdom Animalia is classified into 11 phylum. They are Porifera, Coelenterata, Ctenophora. Coelenterata is also known as Cnidaria. After that, Platyhelminthes, Aschelminthes. Aschelminthes is also known as Nematohelminthes. Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. And here you can see मैंने एक नोट बना के रखी है. The first largest phylum is Arthropoda and the second largest phylum is Mollusca and the third largest phylum is Protozoa. So ये एक छोटा सा नोट था एंड आपको ये याद रखनी है. आफ्टर दैट टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. बेसिकली ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. दैट इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम. Cell, cellular level of organization. Cells are loosely arranged. They are primitive multicellular organisms. And पोरीफेरा में ये सब दिखता है. मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है पोरीफेरा. आफ्टर दैट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा. मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स है सिलेंटेरेटा, फाइलम सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही फाइलम आता है, वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस. और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आफ्टर दैट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स हैं आस्कहेल्मिन्थेस टू कोडाटा. मतलब आस्कहेल्मिन्थेस से लेकर कोडाटा तक जितने भी फाइलम्स हैं उन सब का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? आफ्टर दैट सिस्टम. सिस्टम के अंदर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, इनकम्प्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन. Incomplete digestion. In alimentary canal, one opening present act as both mouth and anus. Example platyhelminthes. मतलब एलिमेंटरी कैनल में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगा जो कि बोथ माउथ एंड एनस के तरह काम करेगा. एंड उसके एग्जांपल्स है प्लैटीहेल्मिन्थेस. देन कंप्लीट डाइजेशन. इन एलिमेंटरी कैनल 2 opening present, one act as mouth and another act as anus. Example phylum Aschelminthes to Chordata. मतलब phylum Aschelminthes से लेकर Chordata तक जितने भी phylums हैं
वो सबका डाइजेशन कंप्लीट है। Then comes to circulatory system. Circulatory system is of two types: open type circulatory system and closed type circulatory system. In open type circulatory system, blood pumped by heart directly to the cell or tissue are bathed from it, called open type circulation. Example, इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बना रखी है, वो है ओ लम्हे तुमसे मोहब्बत। ये बस एक जुगाड़ है एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए, नथिंग एल्स। एक इजी ट्रिक है, ओ लम्हे तुमसे मोहब्बत। इसमें से मोहब्बत को छोड़ देना है, कोई समझ नहीं आता इसमें। तो ओ से ओपन टाइप, एल से लिच, नॉट फाइलम annelida, ओनली लिच। ए से आर्थ्रोपोडा, एम से mollusca एक्सेप्ट cephalopoda एंड octopus. All members of mollusk but except cephalopoda and octopus. ऑक्टोपस और सेफालोपोडा का ओपन टाइप सर्कुलेशन नहीं होता, उनका क्लोज टाइप होता है। एंड एज ई ये कंप्लीट एज ई से हेमिकोडाटा। एंड तुमसे मतलब यू से यूरोकोडाटा। देन कम्स टू क्लोज टाइप सर्कुलेशन, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters like arteries, veins and capillaries. Then comes to third terminology जो कि है germ layer. Germ layer are formed in gastrula. Germ layers are of three types: ectoderm, mesoderm and endoderm. On the basis of germ layer, kingdom Animalia is divided into two parts: डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसको हम लोग डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट डिप्लोब्लास्ट। इन डिप्लोब्लास्ट टू germ layers are participate in body formation called डिप्लोब्लास्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एंड दिस इज़ द बॉडी वॉल जो कि एक्टोडर्मिक लेयर है, एंड दिस इज़ द एंडोडर्मिक लेयर, एंड दिस इज़ द ऑन डिफरेंशिएटेड लेयर। इस फिगर को आपको माइंड में सेट कर देनी है बिल्कुल, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ट्रिप्लोब्लास्ट, ऑल थ्री germ layers are participate in body formation called ट्रिप्लोब्लास्ट। एंड इट्स एनसीईआरटी डायग्राम 2, जैसे कि ये एक एनसीईआरटी डायग्राम है एंड दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम 2। एंड दिस इज़ द बॉडी वॉल जो कि एक्टोडर्मिक है, and this is the endoderm and this is the gut and this is the mesodermic layer, ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जाम्पल है फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस टू कोडाटा। एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल्स है हमारा फोरीफेरा एंड सिलेंटेरेटा टिनोफोरा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पोरीफेरा में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहता है जो कि मेसोडोमिक है, एंड उसको हम मेजनकाइम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है पोरीफेरा। देन कम्स टू टर्मिनोलॉजी नंबर 4, दैट इज सीलम, द बॉडी कैविटी इंटरनली लाइंड बाय मेसोडोम कॉल्ड सीलम। सीलम प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनल जो कि है गट वॉल। Alimentary canal is also known as gut wall. In xylem, organs are present. On the basis of xylem, Animalia kingdom divides into three parts. That is xylem absent, false xylem, and xylem present. Xylem absent, that is also known as acoelomatic animal. False xylem, that is also known as pseudocoelomatic animal. And xylem present, that is also known as eucoelomatic animal, or acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. So basically in acoelomate do not have a body cavity, and the most important example is platyhelminthes. इस एग्जाम्पल्स को आपको याद रखनी है। सो बेसिकली प्लैटीहेलमिन्थेस इज ए फाइलम एज यू नो, एंड मेनली आपको फाइलम और उसके एग्जाम्पल्स को याद रखनी है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट एग्ज़ाम में। और जो कि 11th स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम में भी फाइलम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं।
and then pseudocoelomate. Alimentary canal is not covered by mesoderm, but body wall is lined by mesoderm. एंड इसके एग्जांपल्स है एस्क हेलमिंथेस। और जैसे कि आपको पता है कि एस्क हेलमिंथेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेमाटो हेलमिंथेस, सो यहाँ पर मेंशन भी है। सो ये दो एग्जांपल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दो एग्जांपल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी है। देन कम्स टू सिलोमेटिक एनिमल, सिलोमेट और यूसिलोमेट, एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी। एंड इसका एग्जांपल्स है फाइलम एनेलिडा टू कोडाटा। फाइलम एनेलिडा से लेकर कोडाटा तक जितने भी फाइलम्स हैं उन सब का सिलम प्रेजेंट है, एंड हम उसको यूसिलोमेट और सिलोमेट एनिमल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। एंड एज यू कैन सी दीज आर द डायग्राम्स फॉर एसिलोमेट, pseudocoelomate and coelomatic animals. So this is the gut layer और elementary canal layer, and this is the body wall जो कि ectodermic है, and this is mesoderm and this is endoderm. सो इसका एग्जांपल से प्लैटीहेलमिन्थेस जो कि सिलम एब्सेंट है, जो कि मैंने बताया है पहले से, एंड दिस इज द गॉटवल एंड दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज द मेसोडर्मल पाउच, एंड these are the mesodermal pouch scattered in the body cavity, जो इसीलिए ही ये pseudocoelomate है। एंड इसका एग्जांपल्स है एस्क हेलमिन्थेस, एंड this is coelomatic animals, this is coelomatic animals diagram, and this is the gut wall, and this is the visceral layer, and this is the parietal layer. So these lines are called mesentery. So इसका एग्जांपल्स है Annelida to Chordata, phylum Annelida to Chordata. These animals are coelomate. Then comes to terminology number 5 जो कि है body symmetry. The body are not divided into two equal half by any plane. The plane passes through the center called asymmetry. And इसका एग्जांपल्स है phylum Porifera, ओनली फाइलम पोरीफेरा, जो कि एसिमेट्री एग्जिबिट करती है। एंड देन कम्स टू सिमेट्री, एंड सिमेट्री मेनली टू टाइप्स है, जो एक है रेडियल सिमेट्री एंड एक है बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, एंड उसका डेफिनेशन है द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, द प्लेन passes थ्रू द सेंटर, एंड उसका एग्जांपल्स है सिलेंडरेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्माटा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार आई हुई है नीट एग्जाम में। सो देन कम्स टू बायलेटरल सिमेट्री, बेसिकली द सरफेस सिमेट्री. The body is divided into left and right equal by one plane. The plane passes through the center, called bilateral symmetry. Once again I repeat, the body divided into left and right equal half by one plane passes through the center, called bilateral symmetry. एंड अगर आपको इसका बेहतर डायग्राम्स चाहिए तो सो यू हैव टू गो थ्रू द बुक, NCERT बुक, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा डायग्राम्स मिल जाएंगे। एंड इसका एग्जांपल्स है प्लैटीहेलमिन्थेस टू कोडाटा एंड लावा ऑफ एकाइनोडर्माटा, लावा ऑफ फाइलम एकाइनोडर्माटा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड नीट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। So you have to remember these two questions. Okay, ठीक है। इसके लिए मैंने एक नोट बनाई है और उसको बॉक्स में डाल रखी है। देन कम्स टू टर्मिनोलॉजी नंबर 6 जो कि है सेगमेंटेशन और मेटामराइजेशन। आप मुझे कमेंट में बताना कि सेगमेंटेशन एंड मेटामराइजेशन बेसिकली सेम थिंग और टू डिफरेंट टर्म्स,
मुझे आपके कमेंट में बताना, ठीक है। Segmentation means repetition of segment. Okay, the body are divided into small pieces called segment or metamer, or the repetition of the segment or metamer called segmentation or metamerization. ये दो डेफिनेशन है और आप चाहे तो एक को याद रख सकते हो और दोनों को भी याद रख सकते हो, ठीक है। And segmentation are of two types, like true segmentation and false segmentation. True segmentation or metameric segmentation, or and false segmentation or pseudo segmentation. And then first comes to true segmentation, जो कि segment present since birth. And these are of three types: external and internal segment, only external segment, and only internal segment. इसका एग्जाम्पल है एनालिड्स, एंड ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स, एंड ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है एनालिडा, ठीक है। एंड ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल्स है कोडेट और नहीं, कोडेट नहीं, ओनली मैमल्स, ठीक है। And only internal segmentation means the body is internally segmented, but there is no external segmentation. And only external segmentation का मतलब है externally segmented but there is no internal segmentation, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आथम है एंड ये कॉकरोच है। कॉकरोच जो कि ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अंदर आता है, और आर्थ्रोपोड के अंदर, एंड दिस इज एनालिड्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड दिस इज ह्यूमन लिवर, एंड मामल्स का तो मामल्स एग्जिबिट करते हैं ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन। दिस इज अ डायग्राम फॉर इट। एंड देन कम्स टू फॉल्स सेगमेंटेशन और सीडो सेगमेंटेशन, जो जिसका डेफिनेशन है सेगमेंट प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, एंड उसका एग्जांपल्स है टीनिया सोलियम, जो कि एक पीक टैपम है, एंड आफ्टर बर्थ उनमें सेगमेंटेशन दिखाई देते हैं। कम्स टू टर्मिनोलॉजी नंबर 7, एंड दिस इज द लास्ट टर्मिनोलॉजी, एंड दिस इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मेनली टू टाइप्स है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट। मतलब टू टाइप्स तो नहीं कह सकते हैं, मतलब दो तरह के होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट। जिसमें जिनमें नोटोकॉर्ड जिन जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो उनको हम कहेंगे कि नॉन कोडेट्स, एंड जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे कोडेट्स। नॉन कोडेट्स में आते हैं फाइलम पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडाटा तक। You have discussed all the basic features and important terminologies in this video, in this part 1 video of Animal Kingdom given in NCERT. Stay focused, keep studying बच्चों। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको डिटेल में इजीली अंडरस्टैंडेबल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, देयर यू कैन फाइंड ऑल नोट्स, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। एंड स्पेसिफाई करके आप मुझे बताओ कि आपको किन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए। आई कैन मेक मोर नोट्स अबाउट दिस चैप्टर्स, इट्स नॉट a big deal for me. And one more important thing is, if there is any query regarding this short lecture, so then you can comment below. I'll read all your comments and reply to you guys. I'll reply to you guys. So don't worry, stay focused, keep studying. Thank you.